Hello students, welcome back to our next class, and today's class or today's topic is controlling process. This is the topic from the chapter controlling for class 12. Students, in previous class we studied about controlling, what is controlling, what are the advantage, disadvantage, limitations, features of controlling. So in this class we going to study how we do the control in our organization, or what are the process, what are the steps that we follow to control, to maintain the control in our organization. So student, come and let's see one by one what are these steps. So student, come and see that. First one is, student, that setting performance standard. What is the means of, student, setting performance standard? Setting performance standard means कि we do the activity on that standard only, or for why, for the getting the objectives or getting the goals of our organization, for controlling the people's activity or controlling the employees activity. तो हम पहले से ही standard setup कर देते हैं, and after that we do the control and we just observe the people's working, how they do, and if there is any problem then we control that thing or that activity in our organization. So student, come and let's see what it's saying. So standards are the criteria against what, against which actual performance would be measured. मीन्स कि जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे उसके लिए हम पहले से ही एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, एक वर्किंग प्रोसीजर फिक्स कर देते हैं, दैट इज आवर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्चुअल वर्किंग को मेजर करते हैं कि दैट आवर वर्किंग इज गोइंग ऑन गुड कंडीशन और नॉट. तो अगर गुड कंडीशन पे जा रही है तो दैट इज गुड, अदरवाइज वी डू द कंट्रोल ऑन दैट एक्टिविटी. Next one, standards can be set in both quantitative as well as qualitative. दो चीज होती है स्टूडेंट. फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव. इट मीन्स कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे बेटरमेंट करें, तो वी जस्ट सेटअप अ स्टैंडर्ड, वी जस्ट सेटअप दैन एक्टिविटी टू डू दैट qualitative control. And next one is quantitative control. It means we just set up the activity or we just set up the standards for the quantitative control. It means we just set that how we control our quantity, if there is any problem or if there is any loss or if there is any deviation between our actual standard and that working performance. So उसमें कोई भी performance deviation आता है तो we just see and control and change that activity. तो हम अपनी standards को पहले से ही fulfill कर लेते हैं, पहले से ही setup कर लेते हैं in term of quantitative and in term of qualitative. तो स्टूडेंट, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट वन इज, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल. इट इंपॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी मॉडिफाइड whenever required. It means फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड्स. मीन्स कि जो हमने पहले से वर्किंग क्राइटेरिया को सेट किया हुआ है फॉर डूइंग द वर्क और फॉर डू द कंट्रोलिंग, उसको हमें पहले से ही फ्लेक्सिबल बनाना होता है. बिकॉज कि कभी कभी अगर हमें ज़रूरत लगती है और देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन आर स्टैंडर्ड्स, तो हम उसको ईजिली मेंटेन कर पाएँ. वी जस्ट ईजिली चेंज दैट डेविएशन. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड समझ में आया होगा. इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी डू द कंट्रोल, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं. वी जस्ट सेट अप द activity procedure for our employees, for our working procedure that in our organization the work is done in that process only. और उसके बाद हम उस प्रोसेस पे अपनी कंट्रोलिंग करते हैं. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, सो हमारे जो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच में इफ एनी डिफरेंस, वी गेट एनी डिफरेंस, सो हम उनमें फिर उसके बाद कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर को सेट करते हैं, उसके बाद उस पर वर्क करते हैं, फिर उस पर हम एक्चुअल वर्किंग और सेटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंपैरिजन करके आगे क्या प्रोसेस करते हैं. तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? सो सेकंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. अभी मैंने आपको बताया था इस सेटिंग स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट करते हैं, उसके बाद वी जस्ट मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, वी जस्ट मेजरमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस और वी जस्ट कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम सेटिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कि सही हो रहा है कि नहीं. सो कम एंड सी हाउ वी डू दैट. performance should be measured in an
ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसी के जैसे काम हो रहा है कि नहीं। देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम अपने किसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दैट परफॉर्मेंस इज इन मोड ऑफ आर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट। तो देयर टेक्निक्स आर, व्हाट आर दैट टेक्निक्स? तो दैट टेक्निक्स इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन। हम पहले से जाके पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं पीपल बाय पीपल दैट दे आर डूइंग द वर्किंग प्रोसीजर इन गुड कंडीशन और नॉट। और सैंपल चेकिंग, सैंपल चेकिंग मींस दैट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो हमने सेटअप किए रहते हैं कि हमने जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। सो वी जस्ट चेक द सैंपल कि जो हमारे वर्किंग प्रोसीजर है, जो हमारे वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं। और देयर इज एनी डेविएशन बिटवीन आर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल प्रोडक्शन, कि हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन और जो हमने स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव सेट किया है दोनों के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस तो है कि नहीं। तो दैट इज चेक बाय सैंपल चेकिंग। एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, तो हम अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं दैट आर वर्कर्स आर एम्प्लॉयज डूइंग द वर्क इन गुड कंडीशन और नॉट। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होती है, वहां से हमें पता लगता है कि व्हाट वी स्टैंडर्ड वी सेट अप, तो उस स्टैंडर्ड पे आर वर्कर्स और आर एम्प्लॉयज आर डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट। If there is any deviation, so we come to the next process, that is comparing actual performance with standards. In this we just see कि which work is done by us in actual mode और जो standard mode हमने सेटअप किया था, उन दोनों परफॉर्मेंस में कुछ डेविएशन तो नहीं है, उसमें हम कंपेयर करते हैं और अगर कोई डेविएशन मिलता है तो वी जस्ट कंट्रोल दैट थिंग। तो कैसे हम करते हैं ये देखते हैं। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। कंपैरिजन इन्वॉल्व करता है फ्रॉम व्हाट? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। मीन्स कि जो हमने यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, जैसे सैंपल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके, परफॉर्मेंस रिपोर्ट करके, what we do the actual performance। हमने actual performance किया। After doing the actual performance we just see or we just measure or we just compare that what are the actual performance are done and what are the standards performance is set up। दोनों के बीच में कोई difference तो नहीं है, तो वो difference हम देखते हैं। The steps involves comparison of actual performance with standards। उसको हम लोग वहां पे देखते हैं कि जो हमारा standards performance setup था उसी के according we just do the work or not। फिर such comparison will reveal what they do, they reveal the deviation between, what is the means of deviation? means की differences, deviation between actual and desired result। means कि वहां से हमें पता लगेगा that what are the actual result and what are the results we desired। तो means कि हमने जो अपना standard performance सेट किया था और actual performance जो हुआ है, हम दोनों में कंपेराइज करेंगे और जब कंपेरिजन करने के बाद we get the result कि जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट हमें मिला या फिर वो रिजल्ट हमें नहीं मिला। दिस इज द थर्ड प्रोसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन? वी जस्ट एनालाइज द डेविएशन और वी जस्ट एनालाइज द डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। दोनों के बीच में डिफरेंस को हम एनालाइज करेंगे, कितना डिफरेंस आया है, इज देयर लिटिल बिट डिफरेंस और इज देयर अ ह्यूज डिफरेंस। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसके नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं। तो दैट इज सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। It is therefore important to determine what? Important to determine the acceptable range of deviation। means कि acceptable जो हमने deviation accept किया था तो वो हमारा acceptable range के according है कि नहीं। स्टूडेंट, हम कभी कभी जब अपने standards performance को setup करते हैं so we are the manager, we think or we know that there is a some deviation or few deviation between our actual performance and दैट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो वो होगा ही होगा। सो उसको हम लोग यहाँ पे जस्ट एनालाइज करते हैं कि दैट व्हाट वी सेट द परफॉर्मेंस एंड व्हाट वी डू द परफॉर्मेंस, उन दोनों के बीच में व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डेविएशन जो हमारा था, उससे ज़्यादा डेविएशन आया है या उतना ही आया है या कम आया है, उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद वी गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, दैट हाउ वी डू द कंट्रोल ऑन दैट डेविएशन। अगर कुछ होता है तो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज
critical point control. What is the means of critical point control, student? Critical point control means कि in company or in their organization the work is done in various parts, और उन parts में कुछ पॉइंट्स होते हैं, that key points are there and we just control on that key points. means कि अगर वो की पॉइंट हमारा इफेक्ट हुआ so all of the work is get affected. तो हम सबसे पहले कंट्रोल करते हैं उस की पॉइंट के ऊपर, that the key point will be controlled, so each and everything is in controlled manner. तो हम उस की पॉइंट को कंट्रोल कर लेते हैं और we see the deviation in huge manner and just we go to the critical points and control them. तो हम critical points पे जाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं कि जब हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो all things get control in our organization. So student, I think कि ये क्लियर हो गया होगा. Next one. So student, next one is your management by exception. What is the means of management by exception? The means of management by exception. So student, it means कि अगर हम किसी भी एरिया में थोड़ा सा भी कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करते हैं तो इट मीन्स कि हम कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब ये हो गया कि हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में हम वर्क फंक्शन कर रहे हैं, तो जो हमारा सेटिंग स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने सेट किया है एंड व्हाट द एक्चुअल परफॉर्मेंस वी डू, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट फंक्शन करते हैं. मीन्स कि अगर हमने कोई इस चीज को सेटअप किया कि 2% ऑफ डेविएशन, पहले से हमने लेके चला कि देयर इज 2% ऑफ डेविएशन, तो हम उस पर कोई ज्यादा इशू नहीं होगा. बट इफ देयर इज 5% ऑफ डेविएशन देन वी डू द कंट्रोल ऑन दैट एक्टिविटी. तो 2% हमने पहले से एक्सेप्शन लेके चला कि 2 और 3% का डेविएशन होना है, सो दैट डेविएशन डजंट मीन फॉर अस दैट मच. बट इफ देयर इज मोर डेविएशन और दैट 4-5%, सो वी do the control or we take the controlling process on that thing or that activity. So student, I think ये clear हो गया होगा. Next, move to the next one, that is taking corrective action. अब हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, मीन्स कि आफ्टर डूइंग द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, देन मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, देन एनालाइज कर लिया कि डेविएशन क्या है, मीन्स कि कितना डेविएशन हमें मिला. तो इफ there is a very much deviation or if there is a huge deviation in the differences between or in the activity, तो उस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो वी जस्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन. फिर हम उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे, हम उस एक्शंस को अपनी एक्टिविटीज़ को करेक्ट करेंगे. तो टेकिंग करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशन इज बियॉन्ड द लिमिट. जैसे कि अभी एक्सेप्शन वाले में हमने देखा कि देयर इज 2% और 3% हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर हमारा डेविएशन आता है या ह्यूज डेविएशन होता है तो हम फिर तुरंत ही उस पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं. तो दिस इज कंट्रोलिंग प्रोसेस. हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट वी सेटअप द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेटअप करने के बाद वी डू द एक्चुअल वर्क करने के बाद वी जस्ट मेजर द एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क और एक्चुअल परफॉर्मेंस में हम कंपैरिजन करते हैं. उसके बाद अगर कुछ डेविएशन होता है सो वी एनालाइज दैट डेविएशन, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर डेविएशन को एनालाइज करने के बाद बहुत ह्यूज डेविएशन हमें देखने को मिलता है तो वी जस्ट टेक द करेक्टिव एक्शन. फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं कंट्रोल करने के लिए उस एक्टिविटी को. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So student, here is your next point, that is techniques of managerial control. So there are two techniques of managerial control, that is first one is traditional control जो पहले से चला आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से we follow that, and second one is modern technique. तो वो अभी हमने modern technique, modern era के according हमने उसको find out किया है. तो there are two techniques, let's check one by one what are these. तो student, first is पर्सनल ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन ट्रेडिशनल टेक्निक? ट्रेडिशनल टेक्निक में पहला है पर्सनल ऑब्जर्वेशन. इट मीन्स वी डू द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन टू द पीपल्स. हम हर लोगों पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंडिविजुअली हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं दैट दे आर डूइंग द वर्क इन गुड मैनर और नॉट. आफ्टर कंट्रोलिंग द each and every person, so we control the activity of our
ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यहाँ से पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके हम कंट्रोल करते हैं अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज योर स्टैटिकल रिपोर्ट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टैटिकल रिपोर्ट स्टूडेंट? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मीन्स कि वी जस्ट ऑब्जर्व ऑल द स्टैटिक्स मीन्स ऑल द डाटाज ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। करते हैं दैट हाउ मैनी वर्कर्स डू द वर्क इन आर ऑर्गेनाइजेशन, हमने कितना प्रोडक्शन किया, हमने कितनी वॉल्यूम में मनी को इंट्रोड्यूस किया। सो इन सारी चीज़ों को जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके कंट्रोल करते हैं, तो दैट कंट्रोल इज नोन एज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट ब्रेक इवन एनालिसिस। व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? इन ब्रेक इवन एनालिसिस वी जस्ट मेक द रिलेशनशिप और वी जस्ट चेक द रिलेशनशिप इन आर वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट एंड आर प्रोडक्ट दैट प्रॉफिट। तो हमने कितना कॉस्टिंग किया और कितना हमें प्रॉफिट हुआ, उसका एनालिसिस करके हम कंट्रोल करते हैं। इफ़ आर कॉस्ट इज़ हाई एंड प्रॉफिट इज़ लो, तो हम उस पर फिर एनालिसिस करते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स, क्या है, कहाँ से हमें लॉस हो रहा है, और वेयर आर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन इन आर स्टैंडर्ड मैनर। तो वो सारी चीज़ों को हम वहाँ से एनालिसिस करते हैं एंड देन वी कंट्रोल दैट ऑल एक्टिविटीज़। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर बजटरी कंट्रोल। इट मीन्स कि बजटरी मीन्स बजट, इट मीन्स कि बजटरी कंट्रोल, बजटरी मीन्स बजट। जस्ट वी डू द कंट्रोल इन आर बजट, इन आर एक्सपेंसेस। हमने कितना एक्सपेंसेस किया, ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ऑल द थिंग्स विल बी कंट्रोल्ड बाय बजट। यानी कि मॉनेटरी टर्म में हम कंट्रोल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, दैट इज नोन एज बजटरी कंट्रोल। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ट्रेडिशनल टेक्निक्स समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट let's move to the next one, that is modern techniques. So student, what are the modern techniques? So return on investment. So return on investment means कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया, what we investment we do in our business, उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिला या नहीं, it means प्रॉफिट हुआ या नहीं। So we just analyze, we just see each and every term, each and everything or each and every activity in our organization to take or to see the return on investment, or if there is any लॉस इन आर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला, सो वी जस्ट कंट्रोल दैट ऑब्जेक्टिव और सो वी जस्ट कंट्रोल दैट एक्टिविटी, और मैनेजरियल कंट्रोल हम वहाँ पे फिर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रेशियो एनालिसिस। हम सारी चीज़ों का रेशियो निकालते हैं। एक रेशियो में हम एक परसेंटेज में सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आर एक्टिविटी और व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ डेविएशन। तो इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वी जस्ट कंट्रोल आर एक्टिविटी और वी जस्ट फॉलो द मैनेजरियल कंट्रोल। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टूडेंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम हर पर्सन को, पर पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं और हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्टिकुलर वर्क। मीन्स जैसे कॉस्ट वाले को मीन्स कि जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, इन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वी गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वी गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटी हम डिफाइन कर देते हैं और हमारे वर्कर्स को उन एक्टिविटी के ऊपर वर्क करना होता है। फिर वहाँ से वी मैनेज और वी जस्ट एनालाइज द थिंग्स दैट और ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंडक्टेड इन गुड मैनर और नॉट। और अगर वहाँ से कोई एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है तो वी जस्ट टारगेट दैट डिपार्टमेंट कि इस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी डिपार्टमेंट में हमें प्रॉब्लम है, इसी डिपार्टमेंट में हमें कंट्रोल करना होगा। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट वन इज योर मैनेजमेंट ऑडिट। स्टूडेंट मैनेजमेंट ऑडिट इज द प्रोसेस कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वी जस्ट ऑडिट आवर मैनेजमेंट सिस्टम कि आर मैनेजमेंट आर डूइंग द गुड वर्क और नॉट। मीन्स कि हमारे वर्कर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो दैट इज गुड, बट हमारे मैनेजर ठीक ढंग से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इफ दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑब्जेक्ट और इफ दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क और नॉट। अगर हमारे मैनेजर ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जब मैनेजर ही वर्क नहीं करेंगे तो हाउ डू दे मैनेज आर ऑर्गेनाइजेशन और हाउ डू दे मैनेज आर पीपल्स एंड वर्कर्स। तो हमें मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं टाइम पे, जिससे कि हमारे मैनेजमेंट में एफिशिएंसी और हमारे मैनेजमेंट को मोटिवेशन मिलता है। सो दे डू द कंट्रोलिंग वर्क इन गुड मैनर। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा मॉडर्न टेक्निक्स में ये जो सारे प्रोसेस हैं। नेक्स्ट वन इज योर PERT एंड CPM। PERT एंड CPM मीन्स
कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक मींस इसकी हम किसी को एक काम दे देते हैं, फिर हम उसकी रिव्यू को करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ टेक्निक अप्लाई करके हम कंट्रोल करते हैं इफ देयर इज एनी फॉल्ट। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल पाथ मेथड, तो हमारा ये मॉडर्न टेक्निक में है PERT एंड CPM। Next one is your management information system. This is very effective because this is totally computer operating system. इसमें हम कंप्यूटर से हर एक चीज़ों को, हर एक सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। So there is a very good control in our organization and in our पीपल्स हु आर वर्किंग, और एक्टिविटी को हम चेक करते हैं, मैनेजर्स के थ्रू चेक किए जाते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं बिकॉज हु आर ऑपरेटर्स ऑफ कंप्यूटर, तो उनको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट इज MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम सो डू द कमेंट in comment box and we try to serve you in better mode. Till then, thank you students.